Okay, Bismillah. So, the first thing in today's lesson will be an overview of what is the difference between budget surplus and budget deficit. This is very important. This is also related to fiscal policy. And then we'll jump to monetary policy. So, what is the difference between budget surplus and budget deficit? A government's budget is the difference between its tax revenue and its government spending. Right? A government's budget is the difference between its tax revenue and government spending. So, फिर, what is meant by budget deficit? What is meant by a budget deficit? Any idea? Very good. When the tax revenue that the government is earning is less than government spending. This is budget deficit. Never confuse with a current account deficit. Aisha, what was a current account deficit? So the gap between exports and imports Is positive, negative. Minus import expenditure. Export revenue is less than import expenditure. Right? Budget deficit is when the tax revenue is less than government spending. This is experienced by a developing country. Almost all developed countries a budget. It's an expansion policy. Unemployment. Part of me want it will experience a budget deficit. ठीक है? However, a budget surplus, the tax revenue is greater than government spending. ये कब होता है? Many actually experience a budget surplus. Why? Everything is provided. Denmark में schooling is provided, care is provided, even electricity there. और हर साथ में अगर कभी expansionary policy लगानी हो तो तब भी budget surplus होगा. Sorry, अगर expansionary fiscal policy लगानी हो तो budget deficit होगा. ठीक है? अगर contractionary fiscal policy लगानी हो तो फिर budget surplus होगा. Is the difference clear between the two? समझ आई है? हानिया आधी सोई हुई है तू, समझ आ रही है? क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस? जबरदस्त. ये हो गया जी. ये बजट डेफिसिट इज इन इट सेल्फ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. या मैंने नोट्स में लिखा हुआ. ठीक है. लेट्स नाउ टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी. ये पहली बात, लेट्स डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी. What is monetary policy? Monetary policy is a policy through which the government achieves some of its aims by influencing aggregate demand of the country through the tools of money supply, interest rates and credit regulations. Credit regulations होती हैं कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कितना लोन देने की इजाजत दे रहा है. ठीक है. बट ये जो है ना, दिस इजंट वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टू आर इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स. दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मनी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. अब मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स, हाउ डू चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाउ डू चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड? क्या कर सकते उसको? क्या कहते हैं? कंजम्पशन. और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. चलो एक्चुअली देखते हैं. मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ टू टाइप्स. बाय द वे, मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने उस डेफिनेशन के अंदर एक चीज जो नहीं लिखी वो एक्सचेंज रेट्स है. Sometimes exchange rates are also used for monetary policy. ठीक है. बिकॉज एक चीज याद रखो, जिस तरह मैंने कहा था ना, फिस्कल पॉलिसी इज इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. अब मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो गवर्नमेंट की पॉलिसी, बट इट इज इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री.
आपके मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, दैट एक्चुअली डिटर्मिन्स एंड चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? सो सेंट्रल बैंक not only has money supply and interest rates as their tools, central bank also has exchange rates as its tool. ठीक है, exchange rate is an important tool, और वो जो exchange rate है that is determined by central bank of the country, right? तो हमारा focus ज़्यादा, as I said, money supply and interest rates पे होगा, but I'm going to talk about exchange rates as well. So, monetary policy is of two types. Monetary policy is of two types. इसमें वो जो कल मैंने करवाया था फिस्कल पॉलिसी में, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स और डिस्क्रेशनरी पॉलिसी नहीं है. इसमें सीधा सीधा वी हैव एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. नो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, वो सिर्फ फिस्कल पॉलिसी में. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, अयान बताएगा व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. एग्रीगेट डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? इंक्रीज. ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री. ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, कैसे? हाउ कैन द गवर्नमेंट इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? मनी सप्लाई बढ़ाएं, इंक्रीज मनी सप्लाई, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, रिड्यूस एक्सचेंज रेट्स. दोबारा, इंक्रीज मनी सप्लाई, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, रिड्यूस एक्सचेंज रेट्स. वन बाय वन देखते हैं. मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई वुड मीन पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड. सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड विल राइज. इजी. व्हाट अबाउट इंटरेस्ट रेट्स? इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, सेविंग कम होगी, बोरोइंग ज्यादा होगी, विच विल लीड टू अ फॉल, राइज इन कंजम्पशन बिकॉज सेविंग कम हो रही है, एंड अ राइज इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज बोरोइंग ज्यादा हो रही है. दैट विल कॉज एग्रीगेट डिमांड टू राइज. सिमिलरली अगर एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं, वैसे तो ये दिस इज इनफ. आप अपने ऐसे में ये दो करो, काफ़ी है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं. बट लेट्स सपोज यू वांट टू राइट अबाउट एक्सचेंज रेट्स एज वेल. एक्सचेंज रेट अगर फॉल होता है, एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, इंपोर्ट ज़्यादा होंगे. एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, एस्पेशली अज्यूमिंग इलास्टिक है डिमांड. स्पेशली अज्यूमिंग डिमांड इज इलास्टिक, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट गिरेंगे, दैट विल कॉज एग्रीगेट डिमांड टू राइज. आपने पूरी चेन बनानी है. ठीक है, अगर कहकशां सिर्फ फॉर एग्जांपल कहकशां कहती है कि राइज इन मनी सप्लाई एंड अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स विल लीड टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, शी वोंट गेट मार्क्स फॉर एनालिसिस बिकॉज शी हैजंट मेड द कंप्लीट चेन of analysis essentially, right? So she's supposed to explain why a fall in interest rates will cause an increase in aggregate demand. So पूरी वो chain of analysis is needed. ठीक है? So aggregate demand बढ़ गई, we have this diagram, aggregate demand rises. So Ahmed, which of the aims of the government are being achieved through this diagram? हाँ ठीक है, एंड हाँ सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ. आउटपुट इज राइजिंग, एक्स एक्सिस पे आउटपुट इज राइजिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. नंबर टू, अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग बिकॉज मोर आउटपुट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी. ठीक है अहमद, विच ऑफ द एम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट बीइंग अचीव्ड? नंबर वन, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, तो प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट बीइंग अचीव्ड. एंड नंबर टू, balance of payment is also probably going to suffer. Why? Because there's inflation in the country, while at the same time people are getting richer, so the demand for imports will rise. ठीक है, so उससे
आपका एग्रीगेट डिमांड, सॉरी, इन्फ्लेशन विल राइज एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉल्स। वालेकुम सलाम। ठीक है जी। सो ये हो गया, दिस इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? एवरीथिंग विल बी ऑपोजिट। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मीरब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को क्या करना चाह रही है? डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शनरी में द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। हाउ विल द गवर्नमेंट डू दैट? नंबर 1, reduce money supply. Reduce money supply. When money supply falls, C falls, I falls, aggregate demand falls. Number 2, when interest rate increases, savings increase, right? Interest rate बढ़ है ना, तो people will save more, and borrowing will fall, cost of borrowing बढ़ी, which will cause a fall in consumption and a fall in investment, जिससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। सिमिलरली एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट महंगे हो रहे हैं, इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, उनकी डिमांड चेंज हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा। वी हैव दिस डायग्राम विद अस, एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया जी एग्रीगेट डिमांड का। क्या शाम बताएगी विच इन दिस डायग्राम विच ऑफ द एम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बीइंग अचीव्ड? प्राइस लेवल स्टेबल हो रहा है, अगेन ये ना कहना डिफ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन अच्छी नहीं होती। प्राइस लेवल स्टेबल हो रहा है बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग। ठीक है। व्हाट अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? नहीं, इट्स इंप्रूविंग। व्हाई? बिकॉज देखो, एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग इन द कंट्री, व्हाइल एट द सेम टाइम आगे पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, तो पीपल आर गेटिंग पुअरर, सो दे वुड प्रेफर लोकल गुड्स बिकॉज दे आर चीपर. As a result, the demand for imports will decrease, so balance of payment will improve. So these two aims are being achieved. Which two aims are not being achieved? क्या कहता? एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा कम करना गवर्नमेंट का एम नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ अलबत्ता है. व्हाट इज हैपनिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ? हाँ, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का एम नहीं है. 4 एम्स याद रखो, कल की क्लास में नहीं आई थी ना. देयर आर 4 मेजर एम्स ऑफ द गवर्नमेंट. नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 प्राइस स्टेबिलिटी, नंबर 3 फुल एम्प्लॉयमेंट, नंबर 4 बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम. ऑन द एक्स एक्सिस what is happening to output? That means economic growth is falling. ठीक है, maybe the economic growth is in the negative. And what is happening to unemployment as a result of a fall in output? Increasing. ठीक है, so that means these aims of the government are being achieved, these aims of the government are not being achieved, which means that monetary policy has the same problem as fiscal policy, and that is conflict in aims. Conflict in aims. Right? Some of the aims of the government are being achieved, while some of the aims of the government are not being achieved. Is this clear? समझ आई? ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. और बाय द वे, तुम ये कह सकते हो A2 की इकोनॉमिक्स में you'll study this in a lot of detail कि inflation is mostly caused by an increase in money supply. तो अब you're increasing money supply because you want economic growth. You want economic growth. But it will always cause a rise in inflation. This is a big disadvantage of monetary policy. Because लोगों के पास पैसा होगा, वो overheating करेंगे इकोनॉमी के अंदर. Right? So this is a big problem with monetary policy. ठीक है? ये I've written a good note इस यहाँ पे कि expansionary fiscal policy and expansionary monetary policy have the same end results. What does this mean? What is meant by same end results? Yes, good. Expansionary fiscal and monetary policy have the same end results, meaning that the aggregate demand rises in both, and in both the cases the same aims are being achieved and the same aims are not being achieved. While in contractionary fiscal and contractionary monetary policy, again the end results are the same. Aggregate demand falls, the same aims are being achieved, the same aims are not being achieved. Then what is the difference between the two? The difference is in the tools.
Fiscal policy के tools are taxes and government spending, while the tools of monetary policy are money supply and interest rates and exchange rates. ठीक है? Is this clear? ठीक है? वही मैंने यहां लिखा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट इन एम्स, बट देयर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द सेंस के अगेन लिक्विडिटी ट्रैप आपने अभी किया नहीं है, ये A2 में करेंगे. इंटरेस्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर लोन्स ये भी डिटेल में उसी वक्त करेंगे, तो इसीलिए मैं अभी फिलहाल यहाँ छोड़ रहा हूँ. रिमेंबर दिस, पता नहीं मुझे उस वक्त याद रहेगा कि नहीं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह A2 में, कि when we discuss the problems of fiscal and monetary policy in A2, not only can you write those limitations in paper 4 essays, you can also write those limitations in paper 2 essays, even though it is not required from you in paper 2. लेकिन फिर भी you can write those essays, you will get good marks. ठीक है? हाँ, क्या कैसे आप पूछ सकते हैं सर, व्हाट इफ वी डोंट राइट देम? डू वी, मतलब विल वी लूज आउट ऑन मार्क्स? नो, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दैट दे विल राइट पेपर 3, पेपर 4 स्टफ. बट इफ यू राइट इट, इट्स गुड. ठीक है? सो ये हो गया जी मॉनेटरी पॉलिसी. द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसी इज सप्लाई साइड पॉलिसी. सप्लाई साइड पॉलिसीज भी A2 में करेंगे, बट वो जो AS में करेंगे वो A2 में करेंगे. ठीक है? तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी थोड़े ज्यादा डिटेल में करेंगे, सप्लाई साइड पॉलिसी बेसिकली रिपीट ही है एक किस्म की. व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई साइड पॉलिसीज? सप्लाई साइड पॉलिसीज आर पॉलिसीज थ्रू विच द गवर्नमेंट, नोटिस करो मैं लफ्ज इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा. सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द पॉलिसीज थ्रू विच द गवर्नमेंट increases aggregate supply, not influences. Influence का क्या मतलब होता है? चेंज का क्या मतलब होता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ. वो डिमांड साइड पॉलिसीज थी. बाय द वे, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर नोन एज डिमांड साइड पॉलिसीज, बिकॉज बोथ दीज पॉलिसीज अफेक्ट व्हाट? एग्रीगेट डिमांड. ठीक है? बट नाउ वी स्टडिंग सप्लाई साइड पॉलिसीज. इन सप्लाई साइड पॉलिसीज we define supply side policies as policies that increase aggregate supply, not influence. Because याद रखें, supply side policies में the government never wishes to reduce aggregate supply, because a fall in aggregate supply will never achieve any of the important aims of the government. A fall in aggregate supply cannot achieve any aim of the government. सिर्फ rise in aggregate supply will be able to achieve the aims of the government. माम फोन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ बिल्कुल करते हैं उसको, राइट? सो अब द क्वेश्चन इज, यार बेटा तेरा नाम क्या है? हाँ शेदे, इधर आ जा. ये माम जो है ना पीछे छुपी है, और वो फोन पे है, ये काम खराब हो रहा है. मैं 2-3 दफा माम को देख चुका हूँ, घूरी मार चुका हूँ, लेकिन घूरी का असर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये टोकना पड़ता है बच्चों को. सो अब क्वेश्चन है जी, सर व्हाई डज द गवर्नमेंट विश टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द कंट्री? हाँ, एग्रीगेट डिमांड से नहीं, पहली बात, why does the government wish to increase aggregate supply of the country through supply side policies? The answer is simple. Because the government wants to achieve its aims. Simple. याद रखें, गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी की है ना, उसका कोई एम होगा, उस पॉलिसी से वो एम अचीव करना चाह रहे हैं. ठीक है? सो रिमेंबर, The government wants to increase aggregate supply to achieve its aims. अब मैं दिखाता हूँ आपको कि गवर्नमेंट कौन कौन से पॉलिसीज लगा, कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकती है टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई. बट उससे पहले जरा मैं आपको ये दिखा दूँ कौन कौन से एम्स गवर्नमेंट के अचीव हो रहे हैं. नंबर 1, उससे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ.
ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज आउटपुट इज राइजिंग, अच्छी बात। एज ए रिजल्ट, जिस तरह हानिया ने कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, दिस इज गुड। दूसरा एम। तीसरा, देयर इज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन फॉल हो रही है, देयर माइट बी अ गुड डिफ्लेशन इन द कंट्री, ठीक है, तो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग, तीसरा एम भी अचीव हो गया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नंबर 4, इवन बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूव, वाई? बिकॉज हम देखेंगे सप्लाई साइड पॉलिसीज एक्चुअली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that have been produced in the country, and at the same time there is a fall in the price level, so they're becoming cheaper as well, causing exports to rise, imports to fall. तो वो जो 4 मेजर एम्स थे जो डिमांड साइड पॉलिसीज में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, all of those 4 major aims are being achieved, 1 2 3 4 in supply side policies. तो बहुत अच्छा है ये। तो फिर सर हम सप्लाई साइड पॉलिसी क्यों नहीं लगाते, डिमांड साइड पॉलिसी क्यों लगाते हैं? अभी देखते हैं, उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। सप्लाई साइड पॉलिसीज आर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दे? बिफोर गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम्स, लेट्स गो थ्रू the tools, the measures that the government can take in supply side policies. Number 1, कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दे। इसकी चेन बनाता हूँ, हर उसकी चेन बनाता हूँ। आई थिंक मैंने बनाई नहीं यहाँ पे, नहीं। सो कॉर्पोरेशन टैक्स कम करेंगे ना, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन डिस्पोजेबल प्रॉफिट्स। डिस्पोजेबल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, द फर्म्स वुड वांट टू इन्वेस्ट मोर और लेस, मोर, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। Investment is that one component of aggregate demand that not only changes aggregate demand but also changes aggregate supply naturally because output बढ़ रहा है। So say aggregate demand के साथ साथ aggregate supply भी बढ़ेगी, obviously aggregate demand भी बढ़ेगी, but हमारा ताल्लुक aggregate supply से, ठीक है, aggregate supply बढ़ी, supply से पॉलिसी होगी, ठीक है। This is the first policy. The second tool, वेलफेयर पेमेंट्स कम करें। सर हाउ विल अ फॉल इन वेलफेयर पेमेंट्स इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई? वेलफेयर पेमेंट्स कम करें, लोगों की शाबाश, इंसेंटिव टू वर्क विल राइज, which means there will be increased production which will cause increase in aggregate supply. Good, shabash. Number 3, training and education. Training and education भी उन factors में से है जो aggregate supply के साथ साथ aggregate demand को भी बढ़ाता है। कैसे देखते हैं? If the government spends on providing training and education to the youth and to the general public, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे स्पेंडिंग जब ज्यादा होगी तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। बट मैंने कहा इससे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, कैसे? Good, income ज़्यादा होगी, शाबाश, they'll get paid better, which will lead to an increase in consumption. And at the same time, you can even say, कि sir, if the government is spending on education and training, तो that is part of government spending, जी बढ़ गया, ये भी हो सकता है। So this is the easier method, जो तुम लोगों ने कहा है, that is a better method of increasing aggregate demand, ठीक है, कि पे बढ़ जाएगी लोगों की, वेरी गुड, शाबाश। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगी? बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बट व्हाट अबाउट एग्रीगेट सप्लाई? इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो दैट विल लीड टू इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट, इंप्रूवमेंट्स इन एनर्जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है ना, रोड्स भी आते हैं, डैम्स भी आते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस लीड्स टू अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। इजी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। प्लीज पूरी चेन बनाना,
Make sure you complete the chain of analysis. Never say an increase in infrastructure will lead to an increase in aggregate supply. Why? ठीक है, पूरी चेन बन गई. ठीक है. लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, क्या मतलब? लेबर मार्केट रिफॉर्म्स में द गवर्नमेंट शुड इंश्योर that the power of the employers as well as the power of the trade union is balanced. No one exploits the other. क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर को एक्सप्लॉइट करेगी तो एम्प्लॉयर की विलिंगनेस टू एंटरप्राइज कम हो जाएगी. बट इफ द एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट्स वर्कर्स तो वर्कर्स की विलिंगनेस टू वर्क कम होगी. तो अगर दोनों बैलेंस्ड हैं तो विलिंगनेस टू एंटरप्राइज भी रहेगी, विलिंगनेस टू वर्क भी सही रहेगी, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी. ठीक है. सब्सिडीज वेरी इंपॉर्टेंट. सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? फॉल. जिसे एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? राइट. फाइनली प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन से एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा कैसे होती है? गुड. प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होने से देयर लीड्स टू एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी आमना? विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. इज दिस क्लियर? ये होगी जी एग्रीगेट सप्लाई के 6 से 7 टूल्स. सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन से हैं? 1 सब्सिडी, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इनके बारे में आपने ऐसे में लाजमी लिखना है. और लिखें ना लिखें अप टू यू. इन तीनों के बारे में आपने लाजमी लिखना. कौन कौन से? ना प्राइवेटाइजेशन नहीं. सब्सिडीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. प्राइवेटाइजेशन भी अच्छा है, लिख सकते हो, बट पहले ये 3 कवर होने चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज? नो कॉन्फ्लिक्ट. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं. नंबर 2, सप्लाई साइड पॉलिसीज लीड टू स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स इन द कंट्री. क्या मतलब है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी का? इकोनॉमी का स्ट्रक्चर सही हो जाता है, बेहतर हो जाता है. कैसे? फॉर स्ट्रक्चर बेहतर होने का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए योर इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड. जैसे हाँ, लेबर को आप ट्रेन कर रहे हैं तो दे विल बी प्रोडक्टिव फॉर एवर ना, एटलीस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो नहीं बना रहे ना, हमेशा के लिए बना रहे हैं. ठीक है. सब्सिडी से शायद ना हो, सब्सिडी क्योंकि शॉर्ट टर्म की होती है, बट देयर आर मेनी अदर एज प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, उससे भी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो रही है. ठीक है. So these are the 2 advantages, but there are 2 disadvantages as well. The first, it is very expensive for the government. Almost all of these supply side policies are very expensive for the government, except for privatization जिसमें government को पैसा मिलता है. बाकी सारों में government को खर्चा करना पड़ता है, and that leads to opportunity cost. क्या मतलब आमना opportunity cost? The government can spend on other aspects of the economy that may be more important. ठीक है. Like providing relief to the poor. ठीक है. Number 2, supply side policies have very large lagged effects. क्या होता है lag? Short term fix नहीं है इकोनॉमी के लिए. ठीक है. It will take a lot of time for the economy to basically feel the positive effects of supply side policies. It will take years. ठीक है. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, साल लगते हैं उसको बनने में. ठीक है. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज इफेक्टिव आफ्टर ईयर्स. ठीक है. सो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ विच ऑफ दीज 3 पॉलिसीज इज द बेस्ट? यस. सप्लाई साइड पॉलिसीज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सो अगर सिर्फ इनको ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द बेस्ट. बट इवैल्यूएशन लिख रहे हो ना, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द बेस्ट, यस, बट इन द लॉन्ग रन.
if you want to improve the economy slowly and if you want to improve the structure of the economy, supply side policies are the best. But if there is a very high instability in the country, if there is a chronic instability in the country that requires immediate or short term solution, then you will need monetary and fiscal policy. अच्छा, फिर monetary और fiscal policy में से बेहतर कौन सा है? It depends कि कौन सी चीज को ठीक करना चाह रहे हैं. If you want to reduce inflation, तो fiscal बेहतर है monetary. If you want to reduce inflation, fiscal बेहतर है monetary. Monetary, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, monetary policy से हमेशा inflation होती है, तो monetary policy की contraction से हमेशा inflation कम होती है. तो if in order to reduce inflation, monetary policy is better. But in order to increase employment, फिजिकल पॉलिसी पे. ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह मंडे की क्लास में एक छोटा सा मैं आपको ये नोट लिखवाऊंगा, बिकॉज यू शुड नो दिस. और एक और चीज, व्हाट इफ देयर इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? विल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बी इंप्रूव्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी? नो, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी इन्फ्लेशन को ठीक करेगी? डिमांड पुल, बिकॉज वो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है. लो होंगे तो बॉर्रोइंग ज़्यादा होगी सर. बॉर्रोइंग ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो हाँ, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी. तो अगर आपने इन्फ्लेशन कम करनी है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने. तो फॉर या इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यू शुड डू व्हाट? सप्लाई साइड पॉलिसीज, बिकॉज सप्लाई साइड पॉलिसीज एग्रीगेट सप्लाई को ठीक कर रही है ना. और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी क्यों होती है? बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है. ये सारी छोटी मोटी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मंडे को लिखवाऊंगा. आप पे जाने से पहले एक दफ़ा आपको